The reason, Himesh, I took that decision at that point of time is, as you know, and everybody knows this, that we at Dharma Productions have always shared our films. We've always had press screenings the evening before, sometimes even before that. I believe in very much, even though we are in turbulent times today and we don't know the authenticity levels of what social media has to offer, yet I believe in the power of the media. I am supportive of the media. I am a member of the media myself. I have a talk show. So I believe I'm a member of the media myself. I have full faith in media and I know the power of what they can say and the power of change that they can bring. My big issue was when you have a certain kind of an embargo, when you're seeing the film. And what I was noticing really was that on social media, that embargo was being broken, where people were writing very subtly about the film or indicating something they thought, even if it was not a proper review, it was an indication, it was a suggestion. In a sense, that is also breaking embargo. And that's what really upset me on a personal level and as a filmmaker and as a studio head. Um, I don't I don't want to be fixed on that all through my career because I believe that movies should be shown to the media. And criticism is something I'm not afraid of because just as we have a right to tell our stories, a critic has the right to criticize us or dislike what we've done. It's never about the fear of criticism. It's just that we want to show you our film. So can you please protect the film till the film is released and then write whatever you need to in the morning of the film. That is my fear. So had I to go back, it will be with the hope that everybody keeps that embargo alive. Agar sab promise karte hain कि there will not be those leaks or there will not be those visual put out or like subtle lines about our film, I would love to share Dharak in every Dharma production film way before its release. Hi, Siddharth. Thank you. Hi, Kriti. Hi. What's your I आपने कहा कि मैंने काफ़ी अर्बन फिल्में की हैं और the characters that you play. But I'm going back to a couple of years back where I saw you play a character. There was in a web series, if I believe it was Inside Edge, where you played Prashant Kanaji. And there was similar, theme there. And again, I connected back a lot to the character and storytelling. My question to the two of you is that while we are all living in urban spaces, when as actors you work in a movie and you've gone through the process of essaying these characters, you take away something with the two of you. What were the two things that the two of you took away from the film and from your character? That is going to stay with you क्या forever. पूछा उसने यार कुछ समझ नहीं I आया think for me it's the courage that my character has. I don't think I have that kind of courage. And I remember having this conversation with Shazia first day of when she narrated the film to me. And I told her that, she's a very, very fearless person. She's someone who speaks her truth even when it's difficult. And I don't think I have that as Tripti. And I told her that I wish to learn this from her, and I'm glad that I did. I did learn it from Vidhi. Because when I finished the film, I could see a change in me, and she could see a change in me, hopefully. Hi, this question is बहुत खूबसूरत फिल्म के राइट्स लिए यूट्यूब इंडिया लेकिन हमने अपनी बंद फिल्म हो गया बनाई है सब उस फिल्म से। चल नहीं रहा है और जैसे मैंने कहा है इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड प्राउड of यूट्यूब इंडिया Thank you so much, sir, for sharing that. Moving on to the director Sahiba, thank you so much, first of all. इतनी खूबसूरत कहानी, जितने खूबसूरत ढंग से आपने प्रेजेंट किया, जैसे मैंने कहा एक शेर है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, साथ में सोचने पे मजबूर कर देता है। क्या चल रहा था दिमाग पे जब करण सर के पास ये फिल्म लेके गए थे या जब उनको प्रेजेंट करनी थी, क्या था दिमाग में, बताइए। एक्चुअली मुझे सोमेन ने अप्रोच किया था, सोमेन मिश्रा ने, कि अगर आपके पास कुछ कहानी, क्योंकि उनको मेरी शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी थी बेबाक, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया वो शॉर्ट फिल्म करण को। एंड आई थिंक मतलब ये शायद पहली बार ही हुआ है कि कोई एक 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म देख करके एक बड़ी फिल्म आपको दे दे। तो आई थिंक फुल मार्क्स टू सोमेन एंड करण, आई मीन फॉर द करेज, फॉर द फेथ, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस हैज़ बीन डन बिफोर, क्योंकि मतलब काफ़ी आप देख सकते हैं फिल्म का स्केल भी है। एंड जनरली एक तरीके की स्टोरीज दी जाती है, स्पेशली विमेन फिल्म मेकर्स को,
तो बट मेरे प्रोड्यूसर्स को आई डोंट थिंक वो थॉट कभी भी था कि ये इस तरह की कहानी है, यू नो, मतलब जो जनरली जैसे चलता है कि नहीं फीमेल फिल्म मेकर है, उनके दिमाग में बिल्कुल वैसा थॉट नहीं था. दे हैड देयर फुल ट्रस्ट इन मी फ्रॉम डे वन एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट. और अभी जब यहाँ ये ट्रेलर चला था इस बड़े पर्दे पे और ये रिस्पांस मिला, सो हाउ प्राउड आर यू ऑफ योर एक्टर्स जिन्होंने उसे कितना बखूबी निभाया है? आई एम प्राउड ऑफ माई एंटायर टीम. आई थिंक एक फिल्म के अवार्ड करने में पूरे टीम का हाथ होता है, सारे एक्टर्स का हाथ होता है. इट्स आई एम वेरी वेरी प्राउड. A lot of our crew here, Rahul, who's been my collaborator for almost 3.5 years, worked more than a writer. So I think very emotionally पूरा team attached है फिल्म से, and that matters a lot. And सिद्धांत and तृप्ति, आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, they have given their all, and that is the best thing a director can ask for. कि मतलब literally अपने अंदर को सब कुछ दे देना फिल्म को. तो आई थिंक दोनों ने इतनी मेहनत की, बाकी सारे एक्टर्स ने मतलब हमारी फिल्म को इतनी, मैं सबसे ज़्यादा ये प्राउडली कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी देखा है बोला है कि एक एक्टर इधर के उधर नहीं लगते हैं. यू नो, इन मोस्ट फिल्म यू फाइंड कि अच्छा ये सही नहीं, ये नहीं सही है, बट आप हमारी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा एवरीवन लुक्स लाइक दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. That I'm very proud of. I'm sure 1 अगस्त को हर किसी के मन से यही बात निकलेगी. फिलहाल तृप्ति, this one's for you. Thank you so much for being a part of this film. हर एक सिनेमा की तरफ से मैं यही बोलूँगा. मुझे बताइए, इतनी जल्दी अपने करियर में you worked with some critically acclaimed filmmakers, कुछ बड़ी कमाल की कहानियों का हिस्सा बन गई हैं. यहाँ पे जब इन कोलैबोरेटर्स के साथ आप आई, of course Z Studios, धर्मा, Cloud9 सब साथ आए और ये कमाल की कास्ट, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं यही बोलना चाहूँगी जो मैं फर्स्ट डे ऑफ फिल्म से बोल रही हूँ कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट आई एम वर्किंग विद सच पीपल, बिकॉज पहले ही दिन से, जिस दिन से मैंने नरेशन ली थी और आज के दिन तक मुझे सिर्फ यू नो हैप्पी वाइब्स आई है अबाउट द फिल्म, अबाउट एवरीथिंग. एंड शाजिया हमारे बारे में बोली थी, बट इससे बेटर डायरेक्टर कोई नहीं है, बिकॉज शी इज जस्ट गिवन अस सो मच फ्रीडम एज एक्टर्स. यू नो, especially serious scenes जब आपके होते हैं, you know, you go through a lot, but she's just been there quietly, not trying to make us, you know, force नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए कि आप इस emotion में इस तरीके से जाइए. She was just always smiling, always holding our hands, and I think she's the best director. And इन्हीं की वजह से हम जो कर पाए वो कर पाए. I love you too. But धर्मा प्रोडक्शंस के साथ ही मेरी दूसरी पिक्चर है, and I'm really proud of this one. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Tripti. Thank you so much. Now moving on to Siddhant Chaturvedi, ladies and gentlemen, एक बार तालियां बजाएं. भाई क्या किया है इस बड़े पर्दे पर, क्या किया है? You know, dialogue delivery या वो expressions, उनसे ज़्यादा वो जो खामोशी है ना, वो जो आंखें हैं ना, वो बहुत कुछ बोल रही हैं. काफी layered character है. Please बताएं इसके बारे में थोड़ा. गुड आफ्टरनून एवरीवन. कैसा लगा? अरे यार ऐसे मत ठीक से बताओ. वेल मैं क्या कहूँ, मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रोड्यूसर करण सर जो इन्होंने फेथ दिखाया कि ऐसा कर इसको मारपीट. क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में की हैं सारी कहीं ना कहीं अर्बन रही हैं, और क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से, बलिया से, उस किस्म की कहानी नहीं मिली थी मुझे कहीं. और मुझे याद है करण सर ने जब मुझे कॉल किया और कहा कि यार एक कहानी है, तुम आके सुन लो. और मुझे याद है मैं जब नरेशन के लिए गया और शाजिया और राहुल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और उसी वक्त तुरंत मैंने कहा यार ये मैं कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहूँगा काफ़ी इंटेंस पार्ट था, लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑलवेज टेंड टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो. तो फिर उसके बाद जो जर्नी रही आई थिंक वो शाजिया ने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, फिर तृप्ति ने जिस तरह से साथ दिया है इस फिल्म में, और इनफैक्ट बाकी जो भी हमारे कास्ट हैं, जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रियांक हैं, वो यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो एक गैंग बना, एक जो एक सिनर्जी बनी, आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं. और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं,
बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया, मतलब मैं खाली हो गया था बाय द एंड ऑफ द फिल्म। मुझे लगा कि अब मैं कुछ है ही नहीं अंदर। तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है एज एन एक्टर। सो आई फील वेरी वेरी लकी। सो थैंक यू अपूर्वा सर, थैंक यू उमेश सर, थैंक यू करण सर, थैंक यू सोमेन, थैंक यू टू द होल टीम फॉर एक्चुअली। एंड बाकी तो यार ये आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा। मेरे लिए फिल्म बहुत स्पेशल है। हमने बहुत ही दिल लगा के, धड़क लगा के इसे बनाया है, और आप उस फिल्म में जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो चीज़ फील होगी। थैंक यू सो मच इस टीम के लिए।